Hello friends, let's discuss the most relevant current affair topic for the UPSC CSE Prelims 2026. India launched third launch pad in Sriharikota by 2029. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Shine Initiative, FAO Food Price Index, Asia longest freight train Rudrastra, like in new species discovered in Western Ghat, Sea of Galilee, algal boom incident. The Sriharikota is a barrier island off a Bay of Bengal coast located in SAR project settlement of Tirupati district in Andhra Pradesh. It houses Satish Dhawan Space Center, one of the two satellite launch centers in India, other being the Thumba Equatorial Rocket Launching Station. Indian Space Research Organization launches the satellite using multi-stage rockets such as the PSLV, GSLV from Sriharikota. The Sriharikota was selected by ISRO because of its proximity to the equator. It gives extra centripetal force from the rotation of Earth. The launch pad recently a launch pad is launched from launch pad is created in Sriharikota, and launch pad is an above ground facility from which a rocket powered missile or a space vehicle is vertically launched. The term launch pad can be used to describe just a central launch platform or a mobile launcher platform or an entire complex. The entire complex will include a launch mount or a launch platform to physically support the vehicle, a service structure with umbilical and infrastructure required to provide propellant, cryogenic fluid, electrical power, communication, telemetry, rocket assembly, payload processing, storage facility for propellant and gas, equipment access and road drainage. The third launch third satellite launch pad at Sriharikota will be fully operational by March 2029. The importance of third launch vehicle is as an standby facility to ensure that during the period of delay it will be used. It is designed for the next generation rocket to enhance the India's launch capacity for heavy lift and the human space flight mission. The next generation launch vehicle uh, operations can be supported by this launch pad, which is the 91-meter tall. The next generation launch vehicle is a family of three stage partially reusable medium to super heavy lift launch vehicle currently under the ISRO. The family of these vehicles are designed to replace currently operational system like PSLV and GSLV, the previously referred Unified Launch Vehicle System. The project is now being called the Project Surya. It will be backup for the LVM-3. What is the LVM-3? As we have already discussed in day or two before, that LVM is in a GSLV Mark III, is in a three-stage medium to heavy lift launch vehicle developed by ISRO. ISRO's heaviest operational launcher and primarily designed to launch communication satellite into geostationary orbit and capable of carrying heavier payload to the low Earth orbit. The LVM is designed to launch vehicle for ISRO's human space flight mission, which is Gaganyaan. It also the third launch pad, which will be fully operational by March 2029, will enable the human space flight and critical for the Gaganyaan and the future astronaut mission. It will support the deep sea goals which facilitate the lunar landing, space station assembly and the interplanetary mission. The key feature of it is the completion timeline will be March 2029. Its advanced propellant system will be used to will use the cryogenic and the semi cryogenic fuel. It will push the make in India and include the private sector and MSMEs. It will increase the capacity and height as the next generation launch vehicle twice the height of LVM-3 GSLV Mark III, with the highest high thrust and the new jet deflection system. It multiple work package and modular construction approach for the efficiency. The next generation launch vehicle, it will enable it to make the multiple type of launch pad, and the family of three launcher were the previously being designed by the replacing different core propulsion module of PSLV, GSLV and LVM Mark III. Unlike the latest proposal of the launcher, the initial proposal were planned to be expandable, but the new proposal under the name of NGLV suggests the launcher have the partially reusability. Its significance is the strategic redundancy, reducing the delay, future-proof infrastructure, boost space economy, support the commercial launch vehicle, and make in India and the private sector participation. Next, come to next news.
दोस्तों चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें अभी 34 करोड़ के आसपास जो है सब्सक्रिप्शन हो गए हैं, और अभी रिसेंटली अभी जो रिकमेंडेशन आई है उसमें 300 रुपये पर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी जो है, इसका अप्रूवल मिल गया 2025 से 26 के लिए। तो इसमें 60 to 40% रेशियो रहता है, सेंटर का 60 और स्टेट का 40। एक फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसमें कि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलते हैं इकोनॉमिकली वीकर हाउस होल्ड को, और ये रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल जैसे कि लकड़ी, कंडे, गोबर, इस तरह की चीज़ों को, और एक क्लीन एनर्जी देता है ताकि हेल्थ, इन्वायरमेंट और जेंडर इक्वालिटी इंश्योर रहे। बलिया से लॉन्च हुआ था यूपी में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की स्कीम है। यूनिवर्सल एक्सेस देता है क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए, रिड्यूस करता है इंडोर एयर पॉल्यूशन, हेल्थ हज़ार्ड को रिड्यूस करता है, रूरल वीमेन को की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करता है, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करता है। एडल्ट वीमेन जो कि बिलो पॉवर्टी लिमिट है, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से उनका सिलेक्शन होता है। स्पेशल प्रोविज़न है कि माइग्रेंट फैमिली जिसका कि आधार प्रूफ नहीं है वो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर आती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 में 8 करोड़ कनेक्शन का टारगेट किया गया था मार्च 2020 तक, लेकिन ये पहले ही अचीव हो गया था। अगर बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है जिससे कि स्त्रियों का जो है जीवन काफ़ी सुधरा है। इसका बजटरी एलोकेशन 80 बिलियन का था जो कि शुरू में किया गया था। पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 को रिप्लेस किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को, जो कि 2021 में आई थी। अल्दो स्कीम जो है एक्सेस करती है क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी को, लेकिन पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है अभी भी कॉमन है रूरल एरिया में। 2.0 में जो है 1.6 करोड़ कनेक्शन थे माइग्रेंट हाउस होल्ड के। एडिशनली 75 लाख कनेक्शंस भी दिए गए। डिपॉजिट फ्री जो की फीचर है वो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, 300 रुपये की सब्सिडी डायरेक्ट आती है अकाउंट में। डीबीटी इसमें जो है एलिजिबल है। शाइन स्कीम की बात करें तो साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर के लिए है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च किया है। इसका एम है कि जो अभी बच्चे हैं, नए बच्चे जो कि 9 से 12th क्लास तक के हैं, उनको इंश्योर करना कि वो भी मेडिकल साइंस को समझे और जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। जैसे कि हमने बात की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 13,000 से ज़्यादा बच्चों को इंक्लूड करने की बात हुई है। हेल्थ साइंस और इनोवेशन में इनको इंक्लूड करना है, उनको उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो है उनको और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना है। 2024 में रिलीज़ हुआ था। क्यूरोसिटी इनोवेशन, उसके अलावा फ्यूचर हेल्थ रिसर्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ऐसा कोशिश की गई है। लैब टूर दिए जाएंगे, एग्जीबिशन दिया जाएगा, पोस्टर वॉक होगा, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा प्रोजेक्ट का। साइंटिस्ट आईसीएमआर के साइंटिस्ट से बात करने का मौका मिलेगा कैरियर जर्नी में। उसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस में जो है आगे आने का मौका दिया जाएगा। इसमें एक मस्कट है डॉक्टर क्यूरियो, वो स्टूडेंट फ्रेंडली गाइड रहेगा। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म कोवैक्सीन पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। आई ड्रोन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, टीबी एलिमिनेशन मिशन, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल, इन सब को जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह इंक्लूड किया जाएगा। ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा स्कूल एजुकेशन और रियल वर्ल्ड रिसर्च के बीच में। एजुकेट करेगा स्टूडेंट को अबाउट द प्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस एंड द रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। FAO का फूड प्राइस इंडेक्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जुलाई 2025 का। उसमें 130 पॉइंट की जो है बढ़त देखी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है पिछले आखिरी के 2 साल में। इसमें मीट में एक रिकॉर्ड जंप देखा गया है, जबकि वेजिटेबल ऑयल, सीरियल और डेयरी प्रोडक्ट और शुगर में जो है गिरावट देखी गई है। ये पहली बार लॉन्च किया गया था 1996 में। ये ग्लोबल बेंचमार्क है ताकि फूड के प्राइस हैं उनको मॉनिटर किया जा सके।
मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है उसको देखा जा सके, पॉलिसी मेकर को सपोर्ट करता है, रिसर्चर्स को सपोर्ट करता है, मार्केट पार्टिसिपेशंस को देखता है कि एग्रीकल्चर प्लानिंग में क्या किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी असेसमेंट करता है। 5 कमोडिटी जैसे हमने बात किया, सीरियल, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट और शुगर को देखता है। उसके अलावा जो है इसकी मेथडोलॉजी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइस को देखने की है। उसके अलावा कमोडिटी स्पेसिफिक इंडेक्स है, ग्लोबल बेंचमार्क है, हाईलाइट करता है वेदर, पॉलिसी चेंज, ग्लोबल सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ट्रेड पॉलिसी और बाकी सब जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन को डिसाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन रुद्रास्त्र जो है अभी इंडिया ने लॉन्च की है। इसकी लेंथ 4.5 किलोमीटर थी और ये चली गज ख्वाजा, ये उत्तर प्रदेश से गढ़वा जो कि झारखंड में है उसके बीच में। तो इसका एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, फ्राइट लॉजिस्टिक इफ़िशिएंसी का केस स्टडी है ये। और सबसे लंबी जो ट्रेन है वर्ल्ड की वो 7.5 किलोमीटर की ऑस्ट्रेलिया में है। रुद्रास्त्र उसके पीछे है। ये 6 स्टैंडर्ड रेक इसमें ऐड किए गए थे एक ऑपरेशनल यूनिट में। ये इसमें दीनदयाल पंडित उपाध्याय जो डिवीज़न है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, वहाँ से ऑपरेट हुआ था और ये प्राइमरली कोऑर्डिनेट किया गया धनबाद डिवीजन के साथ। ये फ्राइट एफिशिएंसी का एक जो है एग्जांपल देता है जहाँ सिंगल रन में ऑपरेशनल डुप्लीकेशन को रिड्यूस किया गया। उसके अलावा क्रू मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, रूटिंग, टाइम को मिनिमाइज़ किया गया, रिसोर्सेज यूज़ कैसे करना है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में ये देखा गया। 354 कैरियर कैपेसिटी थी, 72 टन पर वैगन में थे, 7 इंजन लगे थे, 2 आगे और बाकी पीछे थे। तो दोस्तों बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है उसका एक पार्शियली उसका कन्वेंशनल ट्रैक को उसको यूज़ किया गया। मैन पावर की सेविंग हुई, फ्यूल की सेविंग हुई, ऑपरेशनल कॉस्ट की सेविंग हुई, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांजिट टाइम इसका मूवमेंट फास्ट हुआ। तो हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जैसे कहा जाता है कि इंडिया में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए देखना है कैसे जो है मेक ईज़ ऑफ बिजनेस जो है कम मतलब ज़्यादा की जाए। तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। लाइकन की बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो लाइकन एल्गोग्राफा इफुसो रेडिका जो है अभी डिस्कवर हुआ है वेस्टर्न घाट में। लाइकन की बात की जाए तो फंगस और एल्बी का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। फंगस जो कि माइक्रोबायोंट और कम से कम एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, फोयोबायोंट होना चाहिए, तो उससे लाइकेंस बनते हैं। ये ड्रग में यूज़ आता है लाइकेंस, मेडिसिन में, परफ्यूम्स में, फूड स्टफ्स में, डाइज में, और एयर पॉल्यूशन का एक बायो मॉनिटर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। सी ऑफ गैलीली की बात की जाए तो सी ऑफ गैलीली जो है ये सीरिया और इज़राइल के बॉर्डर पे है। अभी ये एरिया जो कि सीरिया का था, गोलन हाइट का एरिया, यहाँ पे इज़राइली ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे यूएन फोर्स डिप्लॉय की हुई हैं। अगर देखा जाए इस एरिया को तो यहाँ पे इज़राइल के जो पड़ोसी देश हैं, लेबनान, सीरिया, उसके अलावा जॉर्डन और इजिप्ट, वो सब कंट्रीज़ हैं। देखा जाए तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है जो डेड सी की रिफ्ट वैली है, वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग एक रिवर जो कि जॉर्डन रिवर है उससे फेड होता है। ये वाला एरिया जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि सी ऑफ गैलीली जो है रिसेंटली कलर चेंज वहाँ पाया गया और वहाँ पे रेड हो गई जो सी ऑफ गैलीली है। तो इसमें लोकल्स हैं और टूरिस्ट ने इसको काफ़ी अलार्म किया, तो इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि एक एल्गल ब्लूम जो कि बोट्रोकॉकस ब्रूनई से लिंक्ड पाया गया कि उसका जो है एल्गल ब्लूम हुआ है, जो कि कारण है क्लाइमेट चेंज का और राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर का। तो एक अगर बात की जाए सी ऑफ गैलीली की तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है नॉर्दर्न इज़राइल में। क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलग अलग नाम है। लेक ऑफ गेनेसरेट न्यू टेस्टामेंट में और सी ऑफ चिनेरेट जो है ओल्ड टेस्टामेंट में है। लोअर गैलीली हिल है, वहाँ पे गोलन हाइट्स है, जॉर्डन रिवर से फेड होता है। अगर देखें तो जोग्राफिकल स्टेट तो 166 मतलब 166 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 48 मीटर की डेप्थ है, 13 माइल लॉन्ग है और 7 माइल वाइड है। क्लाइमेट में देखा जाए तो माइल्ड विंटर होता है, हॉट समर होता है। उसके अलावा बिब्लिकल इवेंट के लिए फेमस है सरमन ऑफ माउंट यहीं पे हुआ था। अगर जो एंशिएंट सिटी ऑफ टिबेरियस और कैपरनम इसी एरिया में थे। अगर रिसेंट इवेंट की बात की जाए तो एक
जो बॉटरोकोकस ब्रुनाई की बात की जाए, ग्रीन एल्गी की, तो उसमें एक रेड कार्टिनोइड पिगमेंट होता है जिस जो सनलाइट में आने से लाल हो जाता है, उसी कारण से ये हुआ था। तो अभी ये देखा जाए तो ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये जो है सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण से सी वाटर में जो हेल्थ है सी एनिमल्स की वो ख़राब हो जाती है। डेड सी सिंक होल भी लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। अगर दोस्तों ये न्यूज़ आपकी अच्छी लगी तो आप ये पीडीएफ जो है T.MEBYS के चैनल में जाके पा सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।